Good morning, students. Today we are going to start a new subject, that is business mathematics, and our topic will be set theory. Okay, so let us discuss like what is a set first of all. So sets are actually the well-defined collection of objects. Here it is important to stress on well-defined word. Okay, जो sets होते हैं, sets are the collection or a group of well-defined object, जो कि well-defined है, इनकी proper definition के according जो उस particular premises में आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, set कहते हैं. And these are denoted by some capital letters. For example, set of all vowels in English language. इतने भी vowels हैं, okay, A, E, I, O, U. Total 5 हैं and they are well defined and definite also. So that will be a definite kind of set which will include all the vowels in English language or English alphabets. Set of all girls pursuing MBA from GDC PTH. ये क्या ये set हो सकता है? That has to be answered by you. So obviously it can also be a set because it is quite obvious that who is a girl and who is a boy. Then set of odd numbers 1, 3, 5, 7, 9. Although this is an indefinite set. Okay, 1, 3, 5, 7, 9, all the odd numbers, विषम संख्याएं. तो ये क्या है कि ये infinitely जाएंगी, but still it is a well defined term, that is the odd numbers. Okay, सबको पता है कि odd numbers क्या होते हैं. Okay, then elements of a set. So the objects include in a set और these are denoted by the small letters. So एक set के अंदर जो भी objects आते हैं उनको हम उसके elements कहते हैं. For example, previous slide में हमने discuss किया about the set of all vowels. तो इसमें जितने भी इसके vowels हैं, letters हैं, A, E, I, O, U, all these are the elements. Okay, so इनको हम small letter से denote करते हैं एक set में, और जो set होता है उसको हम capital letter से denote करते हैं. देखिए, here it is an example of a set. Sequence of elements is not important in a set. जैसे for example, suppose capital A is a set of all the vowels which are present in English alphabets. तो यहाँ पर हम इसको curly bracket के अंदर लिखेंगे. हमेशा sets जो होते हैं उनके elements को हम curly bracket के अंदर ही show करते हैं, denote करते हैं. Okay, so that is one form of depicting a set, that is shown this way. कर्ली ब्रैकेट में हमने इसके सारे एलिमेंट शो कर दिए, A, E, I, O, U. अब इसी में हम जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंट सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, लाइक I, O, A, E, U या किसी और सीक्वेंस में भी. तो 5 अगर है तो उनको अलग अलग तरह से हम अलग तरह से अरेंज करके अलग अलग तरह से लिख सकते हैं. सो द सीक्वेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन अ सेट, बट द एलिमेंट्स आर. तो जितने सपोज 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 के 5 उस पर्टिकुलर सेट में होने चाहिए, तभी वो वाला सेट होगा, अदरवाइज वो दूसरा सेट बन जाएगा. ओके, then the elements of a set belongs to that set. So suppose A, small a, that is one particular element of the set capital A. So ये belongingness का साइन होता है इस तरीके से ना, ये वाला. ठीक है, जैसे E जैसा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर साइड में, that is sign of belongs to. So A belongs to A, where A is equal to the set of all the vowels A, E, I, O and U. Now let us discuss about sets representation. So there are two formats in which we represent a set. First is a roster format and another is tabular one. तो एक है आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म. सो इसमें क्या होता है, रोस्टर में आपका इट इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. फर्दर ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद इन. तो जो भी आपके पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स रोस्टर या टेबुलर फॉर्मेट में होंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और दे विल बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा, लाइक दैट वाज इन आवर प्रीवियस स्लाइड. जैसे कि हमने अगेन जो आपका वोवेल्स का सेट था एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इट इंक्लूडेड द लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट. सो इट वाज एक्चुअली अ रोस्टर और अ टेबुलर फॉर्म. ओके, then for example the set of vowels A, E, I, O, U, so that is a roster or a tabular form. Suited for sets
with few elements. तो इनको अगर हमें, जैसे यहाँ पे केवल 5 ही elements थे, it was just a very small set which included a very limited or a very small number of elements within it. बट जहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर्स होते, जैसे कि हमने इनफाइनाइट सेट था हमारा ऑड नंबर्स का, या ऐसा ही इवन नंबर्स का हो सकता है, प्राइम नंबर्स का हो सकता है, नेचुरल नंबर्स का हो सकता है, तो इन दैट केस that particular roster or tabular form is not suitable. In that case we will use a set builder form. So set builder form describes the common property of elements in a set. वो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देगा, कुछ स्टेटमेंट देगा जो कि उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को शो करेगा. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवल्स. सो इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे. A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में आपका आ गया x डिनोट्स एक्चुअली द एलिमेंट. स्मॉल x, यहाँ पर दिस इज एक्चुअली अ स्मॉल x such that x is a vowel in English alphabets. तो इसको हम इस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में जब लिखते हैं तो that represents the set builder form of a particular set. और ये वाला जो दूसरा था जिसमें हमने डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स को शो किया comma wise, that was a roster or a tabular form. And that is suitable for sets with large number of elements. देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे सेट का write the set A is equal to 1 4 9 16 25. So that is basically the set of the squares of all the natural numbers. देखिए यहाँ पे क्या 1 is the square of 1, obviously 4 is the square of 2, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का है, 25 5 का है. This way, so this actually represent the set of all the square of natural numbers. ठीक है, तो this was a roster format and the solution provides the set builder format of set, जिसमें हम शो कर रहे हैं कि x is such that x is the square of a natural number. Or we can also write in this way that x is such that x is equal to n square, where n belongs to a set of natural numbers, capital N. So here again, there are different types of sets in terms of their definiteness, like there may be a finite sets and infinite sets, as I told you earlier. Finite sets में क्या होता है कि the number of elements are finite or limited. ऐसे हमने बोला कि A is a set of all the elements of x, and x is such that x equal to number of subjects in BBA second semester, or say 4th or 6th semester, or in any other course. तो जो number of subjects हैं किसी भी कोर्स में, they will be limited or finite. ऐसे अगर हम infinite set की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि number of elements आपके अनलिमिटेड हो जाते हैं या इनफाइनाइट हो जाते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें द सेट ऑफ इवन नंबर्स, और द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, और इंटीजर्स, तो ये सारे कैसे होते हैं आपके इनफाइनाइट सेट्स होते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ सेट्स. So here there is a numerical example in which there are certain sets. यहाँ पे कुछ जो sets हैं वो आपके set builder format में show किए गए हैं. You have to write them in a roster or a tabular form. ये आपके लिए exercise रहेगी. आप लोग प्लीज इसको अपनी नोटबुक में खुद से सॉल्व करिएगा. x belongs to capital N and x minus 1 x minus 2 equal to 0. तो ये आपकी एक पूरी इक्वेशन है. पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिएगा. a minus b एंड c minus d, उसको पूरा मल्टीप्लाई करके पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा. देन यू विल फाइंड द आंसर दैट इट सेट द सेट इंक्लूड्स 2 एलिमेंट्स, दैट इज 1 and 2. देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट. तो ये अगर जिनको नहीं आता, जिन स्टूडेंट्स को ये वाला, तो वो सीख सकते हैं. जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगी तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें जो उसके वेरिएबल्स है उसको कैसे फाइंड करते हैं. तो अभी आप इसको छोड़ सकते हैं. देन सेकंड एग्जांपल इसमें है x बिलोंग्स टू कैपिटल N, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो दैट यू कैन सॉल्व वेरी इजीली. यहाँ पर x जो है देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ x एक्चुअली. एक -2 का भी स्क्वायर 4 हो सकता है, और 2 का स्क्वायर भी क्या हो सकता है, 4 हो सकता है. तो इट मे इंक्लूड 2 एलिमेंट्स एक्चुअली. यहाँ पर इस स्लाइड में केवल 2 दिया है, लेकिन ये -2 कैन ऑल्सो बी द आंसर, -2 and 2. देन ऑल्सो इट इंक्लूड्स 2 एलिमेंट
एंड विच आर फाइनाइट इन नंबर। तो ये भी सेट कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। ऐसे थर्ड वाला आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसमें बोला कि x बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट इज x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारे इंफिनिटी तक जाते हैं। एंड x इज अ प्राइम नंबर। तो देखिए इस तरीके का सेट कोई भी नहीं होता कि x जो है वो n को भी बिलोंग करे, नेचुरल नंबर को भी, और एक प्राइम नंबर भी हो। तो ऐसा क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो इस तरीके के सेट को हम बोलते हैं नल सेट, NULL नल, नल सेट। और इसको फाई से डिनोट करते हैं। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इस तरीके का लेटर, ग्रीक लेटर, दिस इज नोन एज फाई। ओके, तो नल सेट को हम फाई से नोट करते हैं। कोई भी ऐसा सेट जहां पर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस सेट को हम नल सेट कहते हैं, और उसको हम फाई से शो करते हैं। ओके, एक है आपका x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड x इज एन ऑड नंबर। तो ऑड, क्योंकि x ऑड नंबर है, तो इट विल बी अ सेट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स, तो एक इनफाइनाइट सेट हो गया। तो आप खुद से इस तरह से इसको ट्राई कर सकते हैं। आप कॉलेज से बुक अपना इशू करा सकते हैं आके, बिजनेस मैथ्स की, और खुद से इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बुक की हेल्प से। ओके, देन द टाइप्स ऑफ सेट हमने डिस्कस कर लिए। ओके, नाउ देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, जैसे कि सेट्स होते हैं, उनके सबसेट्स होते हैं। जो एक पर्टिकुलर सेट में से छोटे छोटे सेट्स बनते हैं, उनको हम सबसेट्स कहते हैं। ऐसे ही किसी सेट का सुपर सेट भी हो सकता है, जो कि उससे बड़ा सेट हो सकता है। ओके, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए, दैट इज कैपिटल ए सेट, आर ऑल्सो देयर इन द सेट बी। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी हैं, और उस पर्टिकुलर सेट में बी में और बाकी और एलिमेंट्स भी हैं, तो बी एक बड़ा सेट हो गया। ठीक है, और जो बी है वो ए का क्या हो जाएगा, सुपर सेट। बी विल बी अ सुपर सेट ऑफ ए, और वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ये आपका सबसेट का साइन होता है। ऐसे सी को थोड़ा इलोंगेट करके बनाते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ऐसे इसको शो करते हैं। ओके, एग्जाम्पल ले सकते हैं, देयर आर टू सेट्स P एंड Q. P is the set of all the girls pursuing BBA from Pithoragarh, and Q is a set of all the students pursuing BBA from Pithoragarh. तो जो आपका Q है, इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों है, इसमें दोनों तरीके के एलिमेंट्स हैं, और Q में सिर्फ गर्ल्स हैं। तो वी कैन से दैट P is the subset of Q, और Q is the superset of P. ओके, तो इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें वाइस वर्सा नहीं होती है। P is the subset of Q, but Q is not the subset of P. ओके, तो ये नॉट करके इस तरह से आप साइन बनाते हो, जहां पे इस तरह से शो करना होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेट्स, सबसेट्स और सुपरसेट्स के, इनको आप ट्राई करिएगा। ओके, सो इसके आगे का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब डिस्कस करेंगे।